नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम, वणकम, ni hao in Chinese, konnichiwa in Japanese. Pradeep ji. Abariyako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, and the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Absolutely, wherever they speak Swahili. Wonderful. Best language in the world. It sounds beautiful. So, Pradeep ji, we still haven't got the official list of the cabinet. Hopefully, we should get it in another half an hour. Yes, yes. आधे घंटे में शायद आ जाएगी. But Mostly, I think the main पद तो वही होगा. Amit Shah, the Home, Gadkari, Ministry of Road Transport and actually, External Affairs to Jaishankar. Yes, I wish they would give Mr. Gadkari the role that he had in 2014, which was all transport. I mean, they could take away air from him. They could have a separate civil aviation minister. But Waterways. Road and waterways. Now, if you remember, Mr. Nitin Gadkari in 2014 started work on waterways transport. के गंगा में from Calcutta he was able to link Banaras. Calcutta से बनारस बार्ज के द्वारा वो लिंक कर दिया था, लेकिन उसके बाद क्योंकि वो मंत्रालय जो है गडकरी जी से ले लिया गया, उसके बाद उस पर कोई काम ही नहीं हुआ। प्रदीप जी, रिवर ट्रांसपोर्ट पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, which is sad. He's a go-getter. I mean, whichever department you put him, he has ways to achieve it. And he used to give us examples. Especially, he talked to you also about how, when he was probably in charge of waterways also, how he used to travel by sea. I mean, he used to travel by sea. And they asked him, "You're taking the yacht of an industrialist." Then he asked him, "Should I go swimming out to the ocean?" Correct. लेकिन और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि बजाज साहब, आप दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक बाय बोट जा सकेंगे, by such and such year. But very unfortunately that never happened. That never happened because I don't know why. There was a reshuffle and suddenly they realized that Mr. Gadkari perhaps has become too powerful and too popular, so they decided to shove him, so they decided to take away river transport from him, which is rather sad. I think I find it. In any event, we'll talk about that. I hope the Modi 3.0 will be far more effective, far more competent, and will be far more all-encompassing than the first two terms have been. And everybody will say, "Hey, listen, this is our Prime Minister and he's done so well." I hope that happens. I hope. I mean, Mr. Gadkari, even when he talked about the cement roads and the highways that he's constructing, he had a study of the cement companies, which he said were underproducing. So he had a meeting with all the corporate honchos of cement company. He said, "You are underperforming. Your limits are much more capacity." And he actually told them, if you are absolutely right, कि आपकी जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी है वो अगर आप प्रोड्यूस करें, मैं इतने में खरीदता हूँ ना। Yes. So and he said, "I bought the cement the most cheapest from the cement companies. The government earned money." And the cement companies earned money. They also earned money. Importantly. Underutilized capacity was being utilized. And people got employment. Bilkul. But that is Mr. Gadkari. And he's a very efficient man and perhaps too efficient, Pradeep ji. जब आदमी बहुत ही ज़्यादा efficient होता है और बहुत ज़्यादा competent होता है, तो बाकी सारे जितने लोग हैं उनसे घबराने लगते हैं, उनके आसपास जितने लोग And he's got a habit to go beyond his turf to study things. Yes. अभी corporates का उन्होंने पता कर लिया कि you're not producing the full capacity. तो ऐसे information you go beyond your turf to find out on the corporates what they're doing. So probably the danger is always there, but it's dangerous for good of the country. For if the country benefits by that. और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि पार्लियामेंट के अंदर क्या है कि जब मोदी जी को बतौर एनडीए का नेता चुना गया, मिस्टर गडकरी was the only one who was sitting down. He didn't get up. I think he's got a back problem because two other instances also he was not getting up because you can't get up and sit, stand, sit, stand, sit, stand, sit. I think he's having a problem. That's what happens usually to people who've had bariatric surgery, by the way. But he had multiple accidents also. Yes, he did. I remember when Majan Munde was
alive, a road accident where his car collided against the ज्यादा car. देर तक गडकरी साहब खड़े नहीं हो सकते और उठक बैठक तो कर ही नहीं सकते। खैर उनके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। फिलहाल कांग्रेस जो आज की तारीख में बहुत उत्साहित है साहब, कांग्रेस में जो खुशी की लहर दौड़ रही है अभी, वो तो देखते ही बनती है। क्योंकि आप जितना मर्जी कंपैरिजन कर रहे हैं, आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि कहाँ 100 सीट और कहाँ 240। अरे भैया कहाँ 52 सीट और कहाँ 303। अरे 303 थी पहले बीजेपी की, इनकी सिर्फ 52 थी। प्रदीप जी 52 से 100 पे लेके आए, और हो सकता है कि पुडुचेरी की सीट अगर ऐड हो जाए तो 101 हो जाएगी। Exactly. सो कांग्रेस हैज सर्वाइव्ड, कांग्रेस हैज रिवाइव्ड इटसेल्फ। और इस वक्त कांग्रेस के गोपाल तिवारी साहब हमारे साथ हैं पूना से। गोपाल तिवारी साहब नमस्कार। सर नमस्कार, सर नमस्कार। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद। बड़े अरे क्या बात है सर, ये देखो मुस्कान क्या जबरदस्त, बिल्कुल हंसी झलकती हुई सीधा स्क्रीन से छूट करके सीधा यहीं पर आ रही है। जबरदस्त सर। बट बाय द वे कांग्रेचुलेशंस, व्हाट अ परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस है सर, मानना पड़ेगा। यस सर, मुबारक हो सर, मुबारक, वेरी वेल डन सर। जी बोलिए। वी आर प्राउड ऑफ आवर लीडर राहुल जी गांधी एंड प्रियंका जी एंड ऑल कांग्रेस लीडर जिन्होंने एफर्ट्स लिए हैं, खरगे साहब जिन्होंने इस उम्र में भी काफी एफर्ट्स लिए हैं सर। वी आर रियली प्राउड ऑफ देम। मानना पड़ेगा। उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा निकाला है, जो बहुत ही अच्छा एक मैनिफेस्टो जो पेश किया है, जो इस देश की जनता ने, करोड़ों लोगों ने उसको डाउनलोड किया है, देखा है, सराहा है सर। उसका काफी अच्छा उसका रिस्पांस मिला। फिर भी और थोड़ा और अच्छा मिलता था तो वी कुड हैव डन समथिंग इमीडिएटली। और लेकिन गोपाल तिवारी साहब, लोग अब ये बोल रहे हैं कि भैया आपने जो कुछ प्रॉमिस किया, चलिए नेशनल लेवल पे नहीं कर सकते, जहां जहां आप लोगों की राज्य सरकार है वहां तो कर सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल पहली नौकरी पक्की, 1 लाख रुपए देना, 1 लाख रुपए नहीं, चलिए 50,000 रुपए कर दीजिए महिलाओं के लिए, वगैरह वगैरह जो भी है। मतलब अब वो आपके ऊपर है सर। जैसे हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में आपकी सरकार है, जहां पर आप खुद मेजोरिटी में हैं, तो वहां पर तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना सर इमीडिएटली। बताएं। 100% देखो, राहुल जी का और इनका आउटस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है वहां पे। जो भी हम कर सकते हैं वी विल डू द बेस्ट, क्योंकि सर हम कमिटेड है। महात्मा गांधी का जो एक कंसेप्ट था, उसी के मतलब उनका जो कंसेप्ट था राजनीति का, उसके प्रति हम कटिबद्ध है, हम डेडिकेटेड है, हम अकाउंटेबल है, तो हम तो वो करेंगे। लेकिन अभी आप देश की जनता ये देख रही है कि हमारा मैनिफेस्टो जो है, हमने अपील की है सबको कि भाई ये हमारा मैनिफेस्टो है और इज प्योरली इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, और हम 5 न्याय करना चाहते हैं। युवा, महिला, हमारे जो बेरोजगार है, श्रमिक है, किसान भाई है और हिस्सेदारी है, इनके प्रति तो हम चाहते कि ये जो पार्टियां है, जैसे कि जनता दल यूनाइटेड है और अपना चंद्रबाबू नायडू का टीडीपी है, जो भी पार्टियां है सेक्युलर, उनको हमने अपील किया है कि वो हमें सपोर्ट करें। अगर वो उनको कुछ लगता है तो वो देश की जनता भी देख रही है कि ये पार्टियां कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही, और वो उसकी देश की जनता उसको नोट करेगी। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। बिल्कुल दुरुस्त बात है, आई एग्री विद यू सर। गोपाल तिवारी साहब, फॉर एग्जांपल पटना से जो अभी खबरें आ रही हैं और इधर अपने आंध्र प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं, वेल्लोर वगैरह से, वहां पर तो लोग जो चिल्ला रहे हैं, वो तो हमने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन प्रॉमिस किया है अपने मैनिफेस्टो में, और हमारे आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं तो वो होने नहीं दूंगा कभी भी। तो मतलब ये तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है ना सर। तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? पता नहीं इन दोनों की क्या मजबूरी है उनके साथ जाने की, चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार जी को। लेकिन ठीक है, चलो वो कुछ दिन देखने दो। अभी मैंने सुना है, आज ही मैं एक मराठी चैनल जय महाराष्ट्र पे मराठी डिबेट था मेरा, उसमें 100 दिन का मोदी जी का जो कंसेप्ट है 100 दिन का, लेकिन कोई बता नहीं पाया कि 100 दिन में वो करने क्या जा रहे हैं। वो सिर्फ 100 दिन का जो एजेंडा बता रहे हैं, लेकिन व्हाट ही इज गोइंग टू डू। 100 दिन सास के 100 पिक्चर दिन में आएगी सर, उन्होंने पिक्चर देखी होगी सर, एक बहुत बढ़िया पिक्चर आएगी 100 दिन सास के।
बहुत बहुत पुरानी पिक्चर थी, रीना रॉय और ललिता पवार थी उसमें सर। सोनिया गांधी जी ने आज खड़गे साहब, आपने बोला खड़गे साहब का बहुत तारीफ किया, बोली द बीजेपी वांटेड टू डिस्ट्रॉय द कांग्रेस, बीजेपी वांटेड टू डिस्ट्रॉय द कांग्रेस, बीजेपी वांटेड टू क्रिपल द कांग्रेस फाइनेंशियली. She said the BJP wanted to cripple the Congress financially. You freezed our bank accounts, they freezed our bank accounts, but it was the leadership of Mallikarjun Kharge that we हर बाउंड्रीज को हमने पार कर दिया, हर जो तकलीफें बीच में डाले बीजेपी ने उसको हमने पार किया. मल्लिकार्जुन खड़गे का तारीफ किया सोनिया गांधी जी ने. Now that is rare. Sonia Gandhi ji coming out and praising somebody the way she praised Mallikarjun Kharge sir. How do you describe Sonia Gandhi's statement? गोपाल जी. सर देखो सोनिया जी एक असूलों के ऊपर चलने वाली लेडी है सर. मतलब अपने पति के प्रति जो धर्म अकाउंटेबिलिटी है, वो उनके जो जिम्मेदारियां थी राजीव जी की और देश के प्रति, वो भी निभाने में वो हिचकिचा नहीं रही है, वो आगे आके वो कर रही है. और सोनिया गांधी एक समय अपोजिशन लीडर थी इन द पार्लियामेंट, आपको याद होगा. और पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर होने के बाद 2004 में उनको मैंडेट मिला, 2009 में भी जनता का मैंडेट मिला उनको. और ये सब काफी कुछ करके दिखाया है सोनिया जी ने. जो सोनिया जी थी वो उनके मतलब बुखार था, लेकिन रात को 1:30 बजे तक पार्लियामेंट में बैठ के फूड सिक्योरिटी बिल उन्होंने पास किया सर. Yes. That's why we are proud of our leader. Sir, both. Don't forget, sir, there was one more thing. Education, right to education and right to food. Right to information act. Yes. Right to information act. ये सभी उन्हीं की देन है सर. और just it's a God's grace. तो सोनिया जी जैसा लीडरशिप हमको कांग्रेस को मिला है. और जो बात कही आपने, बीजेपी मोदी शाह wanted to break the Congress. Actually they wanted to break the opposition. Actually उनको वो opposition नहीं चाहते ये देश में, और ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक बात नहीं है. अगर उनका जवाब इनको मिल गया है, अभी देश की जनता ने दे दिया है. बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट थे अपने बलबूते, अपने मोदी गारंटी, मोदी सरकार, अब की बार 400 बार. तो गोपाल जी, यू बिलीव जो राहुल गांधी जी का जो 2 आंदोलन जिस प्रकार से यात्रा निकाले, और उसका 5 पिलर्स ऑफ जस्टिस जो आपने जस्टिफाई किया पूरे देश को, 5 पिलर्स ऑफ जस्टिस, 25 गारंटी जो आपने वादा किया, वो लोगों को दिल में बैठ गए. एक रिमार्केबल क्वांटम जंप जो आपने लिया, और आपने जो जंप लिया, आपने पूरे इंडिया अलायंस को आगे खींच के लेके गए. 230 के आसपास पूरे इंडिया अलायंस को पहुंचा दिया. द क्रेडिट इन यूपी फॉर प्रियंका गांधी, बिकॉज उन्होंने हकीकत में बातें की है. बोले कि आप गौ माता की बात करते हो, मगर गौ माता को न चारा दे रहे हो, न पानी दे रहे हो, न चारा दे रहे हो, न पानी दे रहे हो, न ऊपर छत है गौ माता के लिए. अभी जो एग्जैक्ट हकीकत है, प्रियंका गांधी वॉज बोल्ड इनफ टू हाईलाइट इन यूपी. जो यूपी में रिजल्ट अगेंस्ट बीजेपी, इट्स शॉक टू द बीजेपी. तो क्या ये सच्चाई बयान करना और सच्चाई को सच्चाई से बयान करना प्रियंका गांधी, यू थिंक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हैज डन अ वंडरफुल जॉब? गोपाल जी 100% सर. ये तो उनका ये भी एक्सपोज हुआ है. प्रियंका जी तो सिर्फ बोल रही है गौ माता को आप ना चारा दे रहे, ना पानी, लेकिन ये बीफ एक्सपोर्टर से इन्होंने जो चंदा लेके बीफ एक्सपोर्ट जो बढ़ा है, इट्स ये क्या है सर? ये कौन सी तरीका है? मतलब आप एक तरफ दिखावा क्या करते हैं, उसके बिल्कुल 360 पॉइंट में यू टर्न लेके आप उसके खिलाफ बर्ताव करते हो. प्रैक्टिकली क्या इम्प्लीमेंट करते हो आप? ये सब धोखा है. राम मंदिर का नाम लेने वालों को अयोध्या में, चित्रकूट में, वहां पे मुंह पे हार खानी पड़ी. ये भी सब बातें हैं. देश की जनता जान चुकी है. और अभी उनको मतलब देखो, आज के तारीख में हमें राहुल जी जो 10-15 साल से मेहनत करते आ रहे हैं, उसका जनता उसको देख रही है, उसको सराहना कर रही है, उसको रिजल्ट भी दे रही है धीरे धीरे. साहब,
अगर आप राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की जो बहुत क्लोज एडवाइजर हैं, बहुत उनके क्लोज हैं लोग, उनसे अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि उनमें थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है। डिसअपॉइंटमेंट इस बात की है कि दे वर एक्सपेक्टिंग द कांग्रेस टू गेट अबाउट 150 सीट्स, के एम्बिशन ये थी कि 150 सीट आएगी कांग्रेस की, आप 100 पर रुक गए, तो वो 50 सीट रह गई। और उन्होंने एक एनालिसिस दिया है कि ये 50 सीट जो है, इसमें जो बीजेपी जीती है कई कई जगह पे 500 वोट से जीती है, कहीं 700 वोट से, कहीं 1200 वोट से, कहीं 900 वोट से। ये क्या है सर, जरा बताएं इसके बारे में गोपाल तिवारी साहब। सर इसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। ये 239 में से 165 सीट जो है, उसमें से 74 सीट जो है 1000 के वोटों के फर्क से, 1000 लेस देन 1000। हाँ, लेस देन 1000। यस। 7 सीट है 200 वोट से फर्क है, 7 ओनली 7। और 23 सीट्स है 500 वोट के फर्क से। yes. तो इसके बारे में एक अच्छा है। आई सैल्यूट टू थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, जुडिशरी, जो चंद्रचूड़ साहब ने जो 45 डेज उसका रिकॉर्ड रखने के लिए जो बोला है, उसके प्रति हम अच्छी तरह से डीके शिव कुमार जी ने, हमारे कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा है, हमने उसका एविडेंस संभाल के रखा है। और हम जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, 45 डेज को मेंटेन करना है एज पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। तो उसमें काफी बातें आगे आएगी, वो वक्त बताएगा। लेकिन ये बात पक्की है, बहुत ही थोड़े वोटों से हमारी सीट, मतलब बीजेपी बहुत छोटे छोटे वोटों से, और बहुत जगह पर, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इसकी पुष्टि मेरे पास नहीं है, आपके पास होगी शायद। प्रदीप जी और मैं वही डिस्कस कर रहे थे सर, जो पोस्टल बैलेट हैं उसमें कुछ काफी धांधली हुई है, ये कहा जा रहा है। अब हुई है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। जो पोस्टल बैलेट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ में हुआ था ना कि यहाँ पर ओवर राइटिंग है, सिग्नेचर यहाँ पर नहीं है, ये मार्क जो लगाना चाहिए था वहां पर नहीं है, ऐसा कुछ हुआ है। सर बताएं प्लीज। सर ये भी बात सही है। एक वाराणसी का वीडियो है मेरे पास, जहां पे कई बातें सीसीटीवी में कैद हुई है, लेकिन अभी वो कितना प्रूफ रिकॉर्ड पे आता है, ये एक चिंता की बात है, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट तो बीजेपी की है। लेकिन हम चैलेंज कर रहे हैं ये सब बातों को। काफी कुछ कई जगह ऐसा हुआ है। और गोपाल तिवारी साहब, चलिए इलेक्शन को लेकर एक तो आपको साधुवाद, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 65-70 सीट आप लेकर के आएंगे, आप 100 सीटें लेकर के आ गए, माशाल्लाह जबरदस्त। और महाराष्ट्र में जो आपने किया है, अरे बाप रे बाप, तो चमत्कार हो गया सर वो तो, मतलब। सर फिर भी हम 2-4 जगह और आ सकते थे, लेकिन चलो ठीक है, जो भी आए वो। सर यू आर द लार्जेस्ट, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन महाराष्ट्र आफ्टर 14 इयर्स, 14 साल के बाद। या फैंटास्टिक। और 14 सीट लेके आए। 14 सीट, बिल्कुल, हाईएस्ट 18 में से 14। What a strike rate, sir. Fantastic. बिल्कुल, Really, really fantastic. आर्टिकल 370 मोदी साहब ने कहा कि हमने जमीन के अंदर गाड़ दिया है। We have buried deep below the earth the Article 370. Nobody can, turn around and Article 370 abrogation को ओवरटर्न करके वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता। It cannot happen. And Article 370 was the greatest thing that we did. And the BJP का क्लेम था कि प्राइम मिनिस्टर सिंस इंडिपेंडेंस, मोदी साहब का सबसे बड़ा अचीवमेंट है आर्टिकल 370 अब्रोगेशन करके कश्मीर को इस देश के साथ इंटीग्रेट करके पूरे दुनिया को दिखा दिया। इट्स अ सक्सेस, इवन नाउ द बीजेपी सेज अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। प्रदीप जी, कल जब प्राइम मिनिस्टर ओथ सेरेमनी, ओथ टेकिंग सेरेमनी जब हो रहा था, तो माता वैष्णो देवी को जाने वाले बेचारे यात्रियों के ऊपर देखो कितना हमला हुआ और कितने लोग मारे गए सर जी। नो, ये माता वैष्णो देवी के कल की बात है, कल की। और इनको कुछ भी नहीं, आज उनका एक कर्टसी, उनके प्रति कोई स्टेटमेंट नहीं है सर। वो क्या मतलब, जब माता वैष्णो देवी के जो जा रहे थे बेचारे इनोसेंट भक्त थे, टेररिस्ट अटैक हो गया। कहां आपके देश की सुरक्षा है? अभी तक तो चार्ज आपके पास ही है पूरा का पूरा। तो ये क्या है, जब अगर 370 हटा है
तो वहां पे चुनाव भी नहीं ले सकते, 2 साल हो गया, वहां पे सिक्योरिटी नहीं, सेफ्टी नहीं, अमन नहीं, शांति नहीं, क्या बात है? तो कैसे अभी अभी ये तो कल की बात है ना सर, ये कल की बात है जी तो कैसे ये तो अभी सिर्फ 370 का कितना दिन उसका क्रेडिट लेंगे भाई? अभी देश की जनता ने बता दिया सर, वो आपको कि आतंकवाद कितना वहां से जाने वाला 370 है। करो या राम मंदिर के बारे में जो बोलो या बोलना करो, लेकिन जो देश की जनता चाहती है उन्होंने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। Sir, it is अभी very impractical to expect that terrorism will be eradicated from the Kashmir Valley and from Jammu just because Article 370 has been repealed. I don't think that's going to happen. Till such time as you have Pakistan as our neighbor, I don't think that's going to happen, very frankly. But in any event, the BJP has claimed so many things, and now all those claims are coming to haunt them. Let's be very clear. But I want to understand from the Congress, sir, Mehbooba Mufti lost their, Mehbooba Mufti lost the election there. You got Farooq Abdullah, Omar Abdullah. Omar Abdullah also lost there. So these are, big parties from Kashmir. उनके लीडर्स हार गए गोपाल जी, इसका क्या इसका व्हाट इज द मैसेज कमिंग आउट फ्रॉम कश्मीर? इफ ओमर अब्दुल्ला लूजेस, इफ महबूबा मुफ्ती लूजेस, तो इज पार्ट ऑफ कश्मीर इन द हैंड्स ऑफ मिलिटेंट्स नाउ, बिकॉज जो व्यक्ति जेल में है उन्होंने ओमर अब्दुल्ला को हराया, मिस्टर इंजीनियर, एंड वेरी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द सेपरेटिस्ट। बिल्कुल, तो क्या व्हाट मैसेज इज कमिंग आउट फ्रॉम द गोपाल जी? सर वहां पे जब असेंबली चुनाव हो गए और मतलब तभी ये कुछ बातें सामने आएगी। वहां पे माहौल अभी भी टेंस में है, तो और उससे तो ज्यादा अब क्या बता सकते हैं आपको। लेकिन जो है वो अगर ऐसा है तो उन्होंने असेंबली इलेक्शन लेना चाहिए था। सर असेंबली इलेक्शन तो सितंबर के पहले करवाना है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो तभी जाके आगे कुछ पता चलेगा वहां पे हालात क्या है। लेकिन तो एक बात मैं आपके एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, एक बात उसके कश्मीर के बारे में आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। देखो कश्मीर 370 हटने के बाद वहां के जमीन जायदाद, प्लॉट, फार्म हाउस खरीद मतलब परचेस करने का सपना देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और हमारे मोदी जी के दोस्त लोग देख रहे थे ख्वाब कि वहाँ फार्म हाउस लेंगे कश्मीर में या कोई टूरिज्म का बड़ा होटल करेंगे। लेकिन वो उसमें कितना सक्सेसफुल हुए पता नहीं, क्योंकि वो लोग वहाँ के कश्मीर के वो देना नहीं चाहते ऐसा मैंने सुना है। इसीलिए उन्होंने बीच में एक एक्सरसाइज की थी, शायद आपको याद होगा, अपने फारूक अब्दुल्ला, महबूबा और ये सबको मोदी जी ने बुलाया था एक मीटिंग के लिए, आपको 1-1.5-2 साल पहले, और वो उनकी एक कोशिश थी कि भाई उनको सबको कुछ कॉन्फिडेंस लेके कुछ माहौल कुछ करने की, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। शायद आपको याद होगा, सबको बुलाया था। देखो फारूक अब्दुल्ला जी था, महबूबा मुफ्ती थी, हमारे गुलाम नबी आजाद थे, अभी 1.5-2 साल पहले की बात है। आपके गुलाम नबी आजाद अभी भी आपके अभी गोपाल जी से पुराना कांग्रेसी लोगों को, तो उसका मतलब यही था कि देखो आपने किसी के साथ जबरदस्ती शादी तो करवा ली, लेकिन आगे भी तो दिल मिलने चाहिए ना सर, तो वो मिलान नहीं हो रहा है सर। चलते चलते बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर। राहुल गांधी जी, ये सवाल ज्यादातर प्रदीप जी पूछते हैं, आज मैं पूछ रहा हूँ। राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि एग्जिट पोल के जरिए एक माहौल बनाने की कोशिश की गई पूरे देश में और तकरीबन 30 लाख करोड़ का स्कैम हुआ है स्टॉक एक्सचेंज के मार्फत, और उन्होंने कहा है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन होना चाहिए। अब आप बताएं सर, बिल्कुल बोले। बिल्कुल वो तो डिमांड है ही हमारे, राहुल जी ने की है। इससे आगे जाके देखता हूं, उन्होंने ये भी कहा कि आप मार्केट देख लीजिए, ये जो एनडीटीवी के मालिक कौन है और एनडीटीवी प्रॉफिट के ऊपर उन्होंने क्यों ऐसे कहा कि 3-4 तारीख को आप जो परचेस करना है कर लीजिए और आसमान छुएगा मार्केट, आपको इतना, ये सब दो जन तब बोल रहे थे जब 21-22 मई को ये जब इंटरव्यू हुआ, तब उनको कैसे पता चला, जब 3rd-4th आखिरी चुनाव बाकी था, तब उनको कैसे पता चला कि भाई ऐसे मार्केट आसमान छूने वाला है और ये सब बातें।
तो ये देखो इनकी आदत है, जब कोरोना काल में देश संकट की गहराई में था तब भी ये बोलते थे मोदी जी कि हम संकट में हम अपॉर्चुनिटी लेते हैं, कोई भी बात की जो है तो एक उसमें जब संकट आता है तो संकट की एक अपॉर्चुनिटी लेते हैं। तभी इन्होंने ये भी अपॉर्चुनिटी ली है जाते जाते कि भाई पता चलता था कि एग्जिट पोल सही नहीं है, और फिर आपने लोगों को क्यों बोला? ये आपका काम है क्या लोगों को फाइनेंशियल एडवांस देना? इट्स टोटली अनड्यू एडवांटेज ऑफ द यूर पोस्ट। होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का ये काम नहीं है कि आपको एक कोई चैनल के साथ देश के सामने अगर आप ये बताते हो कि आप स्टॉक परचेज कीजिए निफ्टी और ये जो है बीएसए, हाँ ये ऊपर जाएगा, ये बताने की कोई जरूरत नहीं थी ना। तो आपने लोगों के भावनाओं से, आपका जो भरोसा है, आपका जो पद है, आपकी पद की गरिमा है, आपका जो इम्प्रेशन है, उसका आपने गलत इस्तेमाल करके उसका फायदा उठाया और तभी लोगों को चोट लगी है। तो सर ये एग्जिट पोल जो आए इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? जो एग्जिट पोल आए बड़े माशाल्लाह 350 सीट और 370 और 450 और पता नहीं क्या कुछ। तो सर ये एग्जिट पोल के जो जिन्होंने दिए उनके मालिकाना हक किसके पास देखी है ना सर, तो तभी आपको पता चल जाएगा ये जो किसके मतलब 200 300 चैनल हु बिलोंग टू किसके ये इसके मालिक कौन है, तभी इन्होंने एग्जिट पोल ऐसे की है। You know, coming back to Kashmir, Gopal ji, बीजेपी when बीजेपी says that stone pelting खत्म हो गया है, जो बड़े बड़े जनाजे निकलते थे, कोई मिलिटेंट जो मारता है, that is not there, and business multiplexes open first time since independence in Srinagar। तो ये क्लेम्स क्या हम लोग नजरअंदाज कर सकते हैं गोपाल जी? स्टोन पेल्टिंग तो दिख नहीं रहा अभी, नहीं तो पहले तो हर जगह स्टोन पेल्टिंग होता था। जनाजे निकलते नहीं है, बड़े बड़े मिलिटेंट जो मर्द शहीद होते हैं या मार दिया जाता है, देयर इज नो ह्यूज जनाजा। तो some facts are true seems to be where BJP says these things. How do you see that गोपाल जी? तो इसी सबका जवाब ये एक है कि अगर इतना अच्छा माहौल है, अगर आपने जो किया है वहां के लोगों को पसंद आया है, तो चुनाव लीजिए सर, तो डेमोक्रेसी वहां पे इस्टेब्लिश कीजिए ना, तभी चलेगा। अभी कुछ बातें, अभी कुछ दिन पहले, साल 6 महीने के पहले जो मिस्टर भट्ट करके वहां पे जो मारा गया था, उसका परिवार कम से कम कितने दिन वहां पे प्रोटेस्ट कर रहा था कि आप कुछ करो करके। ये क्यों हो रहा है? तो अगर ऐसा है तो फिर आप फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर में इलेक्शन लीजिए वहां पे, क्यों नहीं ले रहे? एक ही जवाब है, जब लोगों की सत्ता आएगी तभी पता चलेगा क्या है माहौल वहां का। लेकिन एक चीज तो है सर कि 1947 के बाद सबसे ज्यादा पर्यटक गए हैं इस बार जम्मू और कश्मीर में, 2 करोड़ से ज्यादा गए हैं सर। इसमें कोई दो राय नहीं है, टूरिस्ट तो गए हैं सर, नो डाउट अबाउट इट। और फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोग वहां पे शूटिंग करने दोबारा गए हैं, अब तो जा रही है टीम। अब जो नॉर्मल जो होटल्स जो 3 स्टार 2 स्टार होटल हुआ करते थे वो सबका मतलब उपयोग करके वो वहां उतना तो ये कर सकते हैं ना भी कोई, लेकिन वो तो एक्सपेक्टेड है, ऐसी क्या बात है? लोगों के दिल की भावना क्या है? कश्मीरियत जो है, देखो पुलिस के फौज में सब कुछ आपको वहां मतलब माहौल रहेगा, तो कितना ठीक है, कितना सही सर, है वो तो रहेगा ही सर, उसमें क्या है वो, यू आल्सो नो इट सर, इट इज नॉट, इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड। पुलिस प्रोटेक्शन में सब कुछ हो रहा है लेकिन गोपाल तिवारी साहब, वो तो आपको भी पता है, हमको भी पता है सर, वी हैव सीन इट ऑल। वो क्या है कि होता है सर, ये उसमें क्या है, मतलब नथिंग मेजर। ओके, नाउ वी कम टू द क्रूशियल क्वेश्चन। आई डोंट नो वेदर यू वांट टू स्पेकुलेट ऑन दिस। इसके ऊपर आप कोई प्रेडिक्शन देना चाहेंगे, नहीं देना चाहेंगे, मुझे मालूम नहीं है। आपके मुताबिक मोदी साहब की तीसरी टर्म कब तक चलेगी? क्या फुल टर्म चलेगी, या फिर बीच में जो 2 बड़े खास लोग हैं, आदरणीय सम्माननीय नायडू साहब और आदरणीय सम्माननीय नीतीश कुमार साहब, क्या वो बीच में उनको अलविदा कर देंगे, या आपको क्या लगता है कि सरकार पूरी चलेगी? सर बताएं। देखो सर, 10 साल के बाद आज एक ऐसी घटना घटी है जो वेस्ट बंगाल के
आरएसएस के जो पदाधिकारी है, जिनका भाई भी बीजेपी का बड़ा लीडर है, शंतनु सिन्हा, उन्होंने ये सुनो अमित मालवीय के ऊपर बहुत ही घिनौना आरोप किया है सर जी, किया बहुत ही। हाँ, और उसी के बारे में आज दिल्ली में सुप्रिया सेनेट जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये बात उजागर की है। ये सर, तब आज 10 साल के बाद अब आरएसएस के भी कुछ बीजेपी के लोग बाहर आके खुल के बोलने लगे। जैसे सत्यपाल मलिक ने भी एक समय था जो उसने डेयरिंग करके बोला, एक राम जेठमलानी था, उनका भी एक वीडियो है, मेरी आत्मा को मैं जवाब देना पड़ेगा। ये कई बातें अभी धीरे धीरे सामने आ रही है। और ऐसे ही है, अगर ये दोनों जो मोदी जी बार बार देश को गुमराह कर रहे थे कि कांग्रेस वाले चाहते कि ओबीसी एससी एसटी का रिजर्वेशन खत्म करके वो मुस्लिमों को देंगे, तो भाई अपने चंद्रबाबू नायडू टीडीपी का उनका खुद का मैनिफेस्टो में है कि मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, कि वो क्या उनको एग्री है क्या? उनको साथ में तो लिया है उन्होंने। तो जो चंद्रबाबू नायडू टीडीपी का जो एजेंडा है, जो मैनिफेस्टो है, इज ही गोइंग टू फुलफिल दैट मोदी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट? ये बड़ा सवाल है। और ये नीतीश कुमार जी है, तो उनका पॉलिटिकल हिस्ट्री सबको पता है, वो दोनों एम्बिशियस लीडर है। और एक तरफ हमारा जो मैनिफेस्टो है, वो पूरी देश देख रहा है कि भाई कौन सा मैनिफेस्टो लोगों के हित में है, 5 न्याय है हमारे पास। तो हम तो अपील कर रहे हैं उनको कि भाई ये अगर आप साथ आते हैं तो हम आपके सहारे लोगों को ये मैनिफेस्टो हम पूरा कर सकते हैं। आप भी आ जाइए और अच्छा काम कीजिए, देश के प्रति सेवा का काम कीजिए। उम्मीद करते हैं सर आपकी बात सुनी जाएगी। बट 2024 का मैंडेट मोदी जी के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एनडीए एनडीए एनडीए। दैट्स व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी सेज। सर एनडीए नहीं, उनको भी बीजेपी देखो 10 साल के बाद इनका एक स्टाइल देखो सर, ये आज तक अभी कोई काम पे अपना वोट नहीं मांगते हैं। जब भी देखो अकाउंटेबल, आज भी कुछ लोग कहते हैं कि भाई 100 दिन की बात चल रही थी कि भाई 100 दिन का खाप। अरे मैं बोला कि भाई उनका तो एक बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा था कि वो कितने कॉन्फिडेंट देखते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका कॉन्फिडेंस देखिए। बोला सर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिखेंगे जब आदमी ये जानता है कि कल जो मैं बोलूं आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर दैट यस्टरडे स्टेटमेंट, तो वो कॉन्फिडेंस दिखेंगे ही ना। जब मैं कल का जो मेरे वादा किया है उसको निभाने के लिए मैं बिल्कुल बाइंडिंग नहीं हूं, तो कॉन्फिडेंस में क्या मतलब है? तो देश मोदी जी के साथ है। देखो आज तक 2014 में जो वादे दिए वो 2019 में पुलवामा का आधार लेके वो वादों से बिल्कुल कहीं पे सामने नहीं आए। नोटबंदी पे ना उन्होंने वोट मांगा, ना जीएसटी पे वोट मांगा, ना बेरोजगारी, ना काला धन लाके हम देंगे उस पे वोट नहीं मांगा उन्होंने किस पे वोट मांगा सर? तो पुलवामा के शहादत पे लोग जवानों के नाम वोट दोगे कि नहीं दोगे? अभी वो पुलवामा क्या था क्या नहीं, सत्यपाल मलिक जैसे बीजेपी के लीडर ने पूरा पर्दाफाश किया। फिर भी अभी एक दुख की बात है कि इनको तो इतने भी नहीं मिलने चाहिए थे सर हमारे हिसाब। जब भी ये बात सामने जब भी ये बात हमारे सामने आई है कि कई सारे सीट से 500-200 वोट से आए सर, उसके लिए तो आप जा रहे हैं ना कोर्ट में। हाँ, तो उसके लिए तो आप कोर्ट में जाइए ना, उसके ऊपर तो जो हमारा एक हाँ तो वो बात जो है तो उसमें कुछ ना कुछ धांधली हुई है, ऐसा हमारा सर वो तो नॉर्मल है। आज तक इन्होंने सर इलेक्शन कवरेज में हम लोगों ने इलेक्शन कवरेज करी है पिछले 40 साल से, तो उसमें देखा गया है कि जब भी वो जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री 2000 या 1000 के आसपास भी होती है तब भी उसकी रिकाउंटिंग होती है, री इन्वेस्टिगेशन होती है, सब कुछ होती है, वो तो नॉर्मल होती है ना सर। ऐसी क्या बात होती है? तो करिए ना ऐसी। सर यू हैव द राइट होती है नॉट नहीं उसमें आधार की एक ही बात है, जब फर्स्ट और सेकंड स्टेज में इन्होंने
जो वोटिंग डे के बाद जो डेटा डिक्लेयर किया है, उसके बाद जो डेटा डिक्लेयर किया है, उसमें कम से कम 1 करोड़ और कुछ लाख 1.5 करोड़ वोटों का फर्क है सर। हाँ, है। ये ज्यादा Correct. वोट आए कहाँ से? Correct. ये आधार है उसको। हम जो डाउट ले रहे हैं बिना कारण नहीं ले बट रहे। देयर इज बीन नो एक्सप्लेनेशन, उसके लिए एक्सप्लेनेशन हाँ। नहीं आया फिलहाल जी। हाँ, तो उसका एक्सप्लेनेशन it could be a नहीं आया। normal, it could be a normal thing also, but these things should not happen, सर क्योंकि आज तक नॉर्मल कभी थिंग ऐसा नहीं हुआ हो नहीं है सकती पहले। ना सर। सर नॉर्मल थिंग कैसे हो सकती है? नहीं है। जब शाम को 17C फॉर्म भर के आप देते हो तो उसका कैलकुलेशन करने में कितना समय लगता है? रात को 10-11 बजे तक वोटिंग खत्म होने के बाद दूसरे दिन मॉर्निंग में आप रात को लेट नाइट ही आंकड़े आते हैं। और कौन उसके सा बाद अगर 10 और सर 12 कौन दिन सा के बाद मैनुअली करना है 10 आजकल? आजकल कोई हाँ? मैनुअल चीज थोड़ी है, वो तो कंप्यूटर पे आएगा ना। तो उसका भी जवाब नहीं आया है सामने। नहीं, फिलहाल नहीं है, अभी ये हाँ, फिलहाल नहीं। तो अगर आई होप सर ऐसा है। इनकी नियत भी इतनी खराब है कि जब उनको क्या परहेज था, जब प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन लीडर और जब ऑफिशियली अपोजिशन लीडर नहीं था और सुप्रीम कोर्ट का 2 मिनिस्टर लेके भी अगर कमिटी बना के इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट करते तो भी चलता था, लेकिन उनको वो नहीं चाहते थे कि ऐसा है। अभी नाउ यू आर 234, अब 234 लोग हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि अब पार्लियामेंट में आपकी परफॉर्मेंस अलग रहेगी, और ये भी उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट अब चलेगा, 100%। पार्लियामेंट स्थगित नहीं करना पड़ेगा और लोगों की सस्पेंशन नहीं होगी। मैं उम्मीद ये करता Yes, हूं। sir. राइट, Yes, yes. वंस अगेन कांग्रेचुलेशन सर। एंड द बैकड्रॉप लुक्स You've फैंटास्टिक। done- जो yes, it मदन does. साहब बोल रहे हैं, आपका बैकड्रॉप बहुत बहुत सुंदर लग रहा है गोपाल जी। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच सर, You've done a wonderful job. थैंक यू। You've done a wonderful job. Nobody मैं थोड़ा expected. बता दूं आपको, मैं जी। थोड़ा बता दूं आपको ऊपर। देख लिया सर, महात्मा गांधी ऊपर देख लिया सर, गांधी जी ऊपर देख लिया। जी जी, राइट सर, थैंक यू सो मच सर। Yes, Thank you. yes, Fantastic. fantastic. नमस्कार सर, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम। Yeah, but the only thing is that as far as the Congress is concerned, I wish they would, move on. And if they are dissatisfied with the results or with the counting or with the electoral process, the point is they have to go to the election commission. After hearing in the election commission, if they are not satisfied with it, they have to go to the court. All the legal appeal. remedies available to them, and they were Available, the and topmost they lawyers in their fold. करेक्ट है। तो जैसे फॉर एग्जांपल रविंद्र वाइकर जी की जो इलेक्शन है उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जो पोस्टल बैलेट में धांधली हुई है, अरे भैया अगर धांधली हुई है तो कोर्ट में जाओ ना यार, क्या है उसमें, ऐसी क्या बात है। आफ्टर ऑल देयर इज एन ऑर्डर फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस चंद्रचूड़, कि 45 दिन तक आपको एक एक चीज प्रिजर्व करके रखनी है। यू हैव 45 डेज। अब 45 डेज तो खत्म हो गए, मतलब 1 जून के बाद 45 दिन तो अब खत्म हो गए ना सर। अब क्या है नाउ, क्या 4th of June, right? Yes. The counting was on Counting, 4th of June. yes. Yes, 1st of June was the last day of the elections. 4 जून के बाद 45 दिन तक आपको एक एक चीज प्रिजर्व करके रखनी है, so that any legal challenge can be met with proper documents. So I hope they do. But at the moment with us, our old friend from the Bharatiya Janata Party, Lakshman Saoji Saab,